A very good morning, class. So we were reading the Kabuliwala, written by Rabindranath Tagore, and let's revise first what we have studied so far. So in this chapter, two main characters. Let's say three main characters are one is narrator, self Rabindranath Tagore self, then Kabuliwala, named Abdul Rahman, but people call him Rahmat. Okay, Rahmat Kabuliwala, and one is little girl, little 5-year-old daughter of Rabindranath Tagore, Minnie. So with time, Kabuliwala and Minnie became friends. They used to mingle, they used to laugh with each other, and they became good friends. After some time, what happened in their area, a person, a neighbor of Rabindranath Tagore, borrowed some money from Rahmat and he refused to pay back. That is why Rahmat was so angry, and he killed that man with the help of a knife. Then police came and captured Kabuliwala, and then after many years, when Kabuliwala was released from prison, he just wanted to meet Minnie because she was just at the age, uh, just like Kabuliwala's daughter in his country, Afghan. Okay, so अपनी बेटी की याद में वो इस बच्चे से मिलने के लिए आते हैं. Next day, he arrived to Minnie's house and asked to Minnie's father that he wants to meet Minnie. But at that time, Mr. Rabindranath Tagore was not comfortable because the same day Minnie was getting married. That is why he thought on this good and auspicious occasion, a murderer should not meet to my daughter. So let's see now what happened. And also, Rahmat gave him some dry fruits to give it to Minnie. He came up to me and said, I had bought these nuts and raisins for Koki, please give them to her. मैं उनके लिए लाया हूँ, आप प्लीज़ इसको कोकी मीत मेनी को दे दीजिएगा. When I tried to pay him, he grabbed my hand. You are so kind. I shall always remember. Please do not give me money. आप बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है सर, और बाबू मतलब सर, और प्लीज़ आप मुझे मनी मत दीजिए. ये सब मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं मतलब ओबियसली मिनी की तरफ ये बहुत ही प्यार करते हैं उसको अपनी बेटियों की तरह. बाबू, आई टू हैव अ डॉटर इन माई कंट्री. इट इज़ with her face in my mind that I bring these few things for your cookie. I don't come to trade. मेरी भी एक बेटी है एक अलग कंट्री में जो मिनी की एज की है, और मिनी को देख के मुझे उसकी याद आती है. तो प्लीज़ मैं हम कोई ट्रेड करने, कोई ट्रांजैक्शन करने, कोई व्यापार करने नहीं आया हूँ. प्लीज़ गिव इट टू. हाँ. So saying, he brought out a piece of dirty paper from a pocket near his chest. He unfolded it carefully and laid it out before me on the table. And then Rahmat, means Kabuliwala, took out a piece of paper from his pocket and then he put the paper on the table of Rabindranath Tagore's study table. On the paper was the impression of a small hand, not a photograph, not an oil painting, merely some charcoal rubbed on a hand and then captured on paper. And that paper was containing impression of hand, as you can see in the image of your book. वो हाथ जो उसने बच्ची ने छापे थे, ना ही वो कोई ऑयल पेंटिंग थी, ना ही कोई फोटोग्राफ था. what she did is हाथ पर कोयले लगाकर और उसको इम्प्रेशन पेज के ऊपर प्रेस कर देना, तो उससे वो छप जाता है ना. तो वो with the keepsake of his daughter, Rahmat had traveled every year to Calcutta. As if she touched of the teeny tender baby hand smooth his immense lonely heart. ये जो कीपसेक था, कीपसेक मीन्स ऐसी कोई याद जो आपको किसी की याद दिलाती हो, ऐसी कोई मेमोरी, किसी का किसी के हाथ का बुना हुआ स्वेटर, किसी का कोई फोटोग्राफ, या बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो पर्टिकुलर पर्सन की आपको याद दिलाती हो. सो रहमत की बेटे की ये इम्प्रेशंस थी जिसको वो देखकर हमेशा कलकत्ता आता था ट्रेड वगैरह करने के लिए काम से,
तो अपनी बेटी की इस हाथों को छूता था, उसको अच्छा लगता था, उसको लगता होगा लाइक माई डॉटर इज विद मी। माई आईज फील्ड विद टीयर, मेरी आंखों में आंसू आ गए। आई रियलाइज दैट वी वर बोथ द सेम, वी वर फादर। द हैंड प्रिंट ऑफ दिस बेबी डॉटर रिमाइंडेड मी ऑफ माई मिनी। और ये जो हाथ छपे हुए थे पेपर पे, इसने मुझे मेरी बच्ची की, मेरी मिनी के बचपन की याद दिला दी। और रविन्द्रनाथ टैगोर को रोना आ गया, बिकॉज फादर इज़ फादर। We, like parents, always love their children. At once, I sent for her, clad to in her clad means कपड़े, wearing जो पहने हुई थी वो, bridal attire, Minnie came and stood by me shyly. तो उन्होंने मिनी को बुलाया कि वो ताकि मिनी से मिल सकें। मिनी आई और काफ़ी शर्माते हुए अपने पापा के साइड में खड़ी हो गई। द काबुली वाला वॉज रादर स्टार्टल टू सी हर, वो उसको देखने लगे, काफ़ी हैरान हो गए, मतलब उसको उन्होंने पहली बार देखा था इस तरह से सजा धजा, और ऊपर से वो इतनी बड़ी हो गई थी। सो ही वॉज रियली सरप्राइज्ड। ही कुड नॉट क्वाइट रिज्यूम मतलब किसी चीज़ को वापस से शुरू करना। तो जो उनका कन्वर्सेशन था वो उसको वापस से स्टार्ट नहीं कर पाए। जैसे बचपन में वो उससे बहुत सारी बातें किया करते थे, वो उस चीज़ को दोबारा कंटिन्यू नहीं कर पाए, बिकॉज दिस टाइम इज़ नॉट सेम एज द अर्लियर वन। सो फाइनली ही स्माइल्ड, और वो सिर्फ स्माइल करते हैं और कहते हैं एंड सैड, कोकी आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस? कोकी, क्या तुम अपने ससुराल जा रही हो? एंड इफ़ यू रिमेंबर देन दिस वॉज द जोक बिटवीन दिस टू, है ना। तो जब वो जेल जा रहे होते हैं तब मिनी भी उनसे ये सवाल पूछती है कि रहमत, क्या तुम अपने ससुराल जा रहे हो? मिनी नाउ न्यू द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, और मिनी अब सच में इस वर्ड का मीनिंग जानती है। शी कुड नॉट रिप्लाई रेडिली एज ऑफ ओल्ड। एज ऑफ ओल्ड मीन्स जैसे कि पहले, इन पास्ट वो कर पाती थी, इस बार उसने इस चीज़ का ऐसे रिप्लाई नहीं करा। शी ब्लश्ड एंड टर्न्ड अवे हर फेस, शर्मा गई उसको थोड़ा सा, और वो वहाँ से चली गई। द फर्स्ट मीटिंग कैम टू माई माइंड, तो यहाँ पर नरेटर कहते हैं कि उनकी पहली मीटिंग मेरे दिमाग में आज आ गई। आई फेल्ट अ स्ट्रेंज एक्ट इन माई हार्ट, और मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ जब मैंने इन दोनों के बारे में सोचा। आफ्टर मिनी लेफ्ट, रहमत हीव्ड अ ग्रेट साई, मीन्स जब मिनी चली गई तो रहमत ने एक चैन की सांस ली, एंड सेट डाउन ऑन द फ्लोर, और फिर फर्श पर बैठ गए। ऑल ऑफ अ सडन, ये सब कुछ अचानक ही हुआ। ही रियलाइज दैट हीज ऑन डॉटर टू हैड ग्रोन अप, और तब उसे ख्याल आया कि मेरी बेटी भी आज उतनी ही बड़ी हो गई होगी, क्योंकि वो सेम एज की थी विद हर टू। I'll have to break the ice again. He won't find her as he had left her. Break the ice means होता है remove the feeling of awkwardness between two people who don't know each other and make them feel more comfortable with each other. Obviously एक बच्चे जिसको वो बहुत छोटा सा छोड़कर आ गए हैं, तो वो जब एक अडल्ट हो गई है, वो यंग हो गई है, तो अपने फादर को कैसे, मतलब ऑब्वियसली फादर को कोई रिकॉग्नाइज सब कर लेते हैं, पर वो रिलेशनशिप वापस से कैसे मेंटेन होगा जो इतने साल उन्होंने उसके बिना रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो दैट इज़ वाई ही इज़ यूजिंग ब्रेक द आइस। तो उन दोनों के बीच में काफ़ी एक ऑकवर्ड सिचुएशन आ गई है। एक बच्चा जिसको हम 5 साल का छोड़ कर आए हैं, और अब जब जा रहे हैं तो वापस वो 20 और समथिंग 21 ईयर अराउंड है, तो उस रिलेशनशिप को वापस से मेंटेन करना, उन इतने सालों का प्यार, अंडरस्टैंडिंग, वो सारी चीज़ों को लेकर आना बहुत डिफ़िकल्ट है ना, राइट। ही वॉन्ट फाइंड हर एज ही हैड लेफ्ट हर, तो वो आई हैंडेड हिम अ नोट, रहमत गो बैक टू योर कंट्री, योर डॉटर, मे द हैप्पीनेस ऑफ योर रीयूनियन ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई मिनीज लाइफ। तो कहते हैं उसको एक नोट देते हैं, और नोट पे लिखा होता है, रहमत आप अपनी कंट्री में लौट जाइए, अपनी बेटी के पास, और अपनी ज़िंदगी में वापस से खुशियाँ मनाइए, रीयूनियन करिए अपनी खुशियों को, और हो सकता है कि आपकी इस खुशी से मेरी बच्ची की खुशी, ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ जाएं। बिकॉज आई गेव अवे दिस मनी, आई हैड टू फोरगो अ फ्यू aspects of the wedding celebration. The electric lights and the music could not be grand as planned, but for me, the festivities grew brighter with a blessed light. Actually, he did spend obviously the money which was he planning to use in wedding celebration for lights, for grand lights and music. तो वो सारा पैसा उन्होंने किसको दे दिया? रहमत को।
ताकि वो दूसरी कंट्री मीन्स अपनी कंट्री जाए और अपनी फैमिली से मिले, अपनी बेटी से मिले। तो वो कह रहे हैं नरेटर कि हाँ, मेरी बेटी की शादी में ग्रैंड लाइट्स और ग्रैंड म्यूज़िक की कमी रह गई, लेकिन फिर भी मेरे दिल में जो खुशी है वो एक ब्लेस्ड लाइट की तरह जल रही है। मीन्स किसी की हेल्प करके जो आपको खुशी मिलती है ना, वो आपको कहीं नहीं मिल सकती। एंड इट इज़ सच अ ट्रू स्टेटमेंट, रियली यू मस्ट ट्राई इट। आप कुछ करो किसी के लिए तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगा, इवन वो एक छोटी सी ही चीज़ क्यों ना हो। लाइफ इज़ नॉट अबाउट टैकिंग, ओके, लाइफ इज़ अबाउट गिविंग। तो ज़िंदगी ना देने का नाम है। अगर आप किसी पुअर की हेल्प करते हो, आपके पास पैसे हैं, आप या फिर किसी भी मटेरियलिस्टिक फॉर्म में किसी की हेल्प करते हो, तो यू वुड बी रियली ग्लैड। आप करके देखना, आपको जो खुशी होगी वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड होगी। सो आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा। एंड योर होमवर्क इज़ वर्कशॉप ऑफ दिस chapter. Do complete workshop and submit into query group.